Guys, now what we are discussing next is about the par value of the bond. Over here, whatever we are discussing is going to be very important. If you do not understand this, you will not understand the remaining 18 chapters of fixed income. This is the most important part. Please do not zone out. Please have a thorough focus over here. If you do not understand, ask me 10 times. And I will answer all the 10 times patiently. But be focused. बात करें par value of the bond. Yes. So what is the par value of a bond? The par value of the bond is the principal amount that will be repaid on or before the maturity. So this is the amount which is typically paid on day one, and then eventually it is repaid on or before the maturity. This par value is also referred as the face value, the maturity value, the redemption value, or the principal value. Now here's the thing. The bonds, when they are issued on day one, if their coupon rate is equal to the market rate of interest, then we say that the bonds are issued at par. But if their coupon rate is less than the market rate of interest, we say that the bonds are issued at discount. And if the coupon rate is more than the market rate of interest, we say the bonds are issued at premium. Getting it? For example, if coupon rate is 10%, market rate is 10%, the bonds are issued at par. If coupon rate is 10%, but the market rate of interest is 12%, it is at discount. And coupon rate is 10%, but the market rate of interest is, let's say, 9%, it is at premium. Clear hai? Which rate it is, like market rate? Market rate. Which rate it is? Okay. Okay, I heard your question. I'll address that question. But so far, did you understand? Yeah. Girls? Yes. Yes, sir. अरे तुम लोग को समझा इनका सवाल? He is asking कि market rate of interest क्या होता है? कौन सी? हाँ? Exactly कौन सा करेंगे? Sorry? मार्केट रेट मतलब कौन सा इंटरेस्ट हम चेक करेंगे? अच्छा, तुम्हारा भी सवाल है क्या? हाँ. अच्छा, मुझे सॉरी. सानिका, तुम्हारे पास जवाब है इसका? मतलब अपना जो ट्रेडिंग मार्केट है उसमें कौन सा इंटरेस्ट रेट पे मतलब ट्रेड किया जा रहा है या फिर क्या बोलते हैं उसको, फ्लक्चुएट होता रहेगा ना? ओवरऑल मार्केट में लाइक कौन से मतलब बेस प्राइस क्या रखा है. इट शुडंट लाइक एक बॉन्ड हायर प्राइस पे बेच रहे, एक बॉन्ड लोअर प्राइस पे बेच रहे, तो देयर विल बी क्या बोलते हैं उसको, एक लाइन इक्विलिब्रियम वाला. इक्विलिब्रियम वाला. रोहित, तुमको क्या लगता है, लोग जो बात कर रहे हैं, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, आर यू एबल टू अग्री विद देम? नहीं. हाँ, तो तुमने जो मना, Let's say I कोई think भी you said, bond है. हाँ, When we are saying market rate of interest means किस चीज का है? कोई एफडी का इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम? कौन से मार्केट रेट की बात? मार्केट तो बहुत सारे हैं. विच रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी, और एनी स्टैंडर्ड रेट लाइक लाइबोर इज देयर. किसकी बात कर रहे हैं? वैसे लाइबोर अभी है नहीं, पर हाँ ठीक है. ठीक है, I'll answer that ईबोर question. मतलब ठीक है. I'll answer that question. But I'm so happy you guys are asking this question because most of the students, they agree with it. In fact, let me broaden up your question base over here. My first and foremost question and your first and foremost question, which should be and which it is, कि भाई ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, किसका है ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट? क्वेश्चन नंबर 1. दूसरा क्वेश्चन कि यार ये मार्केट रेट को कूपन रेट से क्यों कंपेयर किया जा रहा है? देखो, हो रहा है ना कंपेयर. हाँ. और कंपेयर किया तो किया, उससे पता कैसे चला कि पार पे है, डिस्काउंट पे है कि प्रीमियम पे है? होता क्या है सब? कहना है ये अपने ब्रॉडली 3 क्वेश्चंस है. हाँ. तो मैं तुम लोग को ये हर एक क्वेश्चन का जवाब 1 एट अ टाइम दे रहा हूं. लेट्स टॉक अबाउट इट. एक्चुअली कुछ क्वेश्चन एक साथ का जवाब मिल जाएगा. अच्छा, इक्विटी मार्केट, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर एन इन्वेस्टर, यू हैव $1,00,000 और तुमको इन्वेस्ट करने का है. अगर इफ यू आर टू इन्वेस्ट इन एन इक्विटी मार्केट, कैन आई से, इफ आई हैव टू सिंप्लीफाई थिंग्स, कैन आई से यू विल इन्वेस्ट
You will do the research and you will compare companies and you will invest only in that company which gives you the higher return. Yes. Yes. So what you will do is you will A, compare and then invest in high returns. Acha, how do you calculate return? Your income upon the invested amount. बराबर है? हाँ. अच्छा, रिटर्न को बाय द वे यील्ड भी बोला जाता है. सो यू विल इन्वेस्ट वेर यू गेट अ हायर यील्ड. बराबर. अच्छा, इफ आई वर टू से यार डोंट इन्वेस्ट इन इक्विटी, प्लीज इन्वेस्ट इन फिक्स इनकम मार्केट, तो कैन आई से ओवर हियर ऑल्सो यू विल कंपेयर one bond with another bond? What's it? And invest in the bond which has got higher yield. Yes. So let's do that comparison. Let's say for example, I am the borrower who is issuing bond A. ये पूरा कॉन्वर्जेशन शांति से सुनना, हर एक चीज समझना. जो कॉन्सेप्ट मैं तुमको 12वें चैप्टर में सिखाने वाला हूं, उसका थॉट प्रोसेस मैं अभी से तुमको दे रहा हूं और तुमको पता भी नहीं चलेगा मैंने उसके बारे में बात कर दी है. तो प्लीज शांति से सुनना और अच्छे से सुनना, हर एक वर्ड पकड़ना. ठीक है? हाँ, ये कॉन्वर्सेशन आखिर तक जाएगा. बॉन्ड ए, लेट्स से आई एम द बोरोवर, बॉन्ड ए, एंड देन देयर इज अनदर बोरोवर हु इज इशूइंग बॉन्ड बी. यू आर गोइंग टू कंपेयर, यू वांट टू इन्वेस्ट. बॉन्ड ए वाला इन्वेस्टर बोलता है कि यार मुझे 1 साल के लिए बोरोइंग चाहिए. सॉरी, बॉन्ड ए का बोरोवर बोलता है मुझे 1 साल के लिए पैसा चाहिए. तो पार वैल्यू कितना? मैं बोलता हूं 1 लाख रुपया, 1 लाख डॉलर, और कूपन रेट है लेट्स से फॉर एग्जांपल 9%. मतलब 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, कैन आई से यू विल गेट द कूपन अमाउंट विच इज $9,000 एंड योर प्रिंसिपल बैक विच इज $1 लाख. बराबर है? Yes. वर्सेस, अच्छा बाय द वे यहां पे तुम्हारा रिटर्न कितना है? व्हाट इज योर यील्ड? Definitely. 9%. 9,000 upon 1 lakh, the invested amount, which is 9%. बराबर है? Let's talk about blue color, bond B. बॉन्ड बी बोलता है कि यार मेरे को भी 1 साल ही चाहिए, आज 1 लाख दे, पर 10% है आफ्टर 1 ईयर. तो तुमको 1 साल बाद 10,000 मिलेगा और 1 लाख भी मिलेगा. एंड हियर योर यील्ड इज 10%. अभी आपन तो दोस्त है, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं वगैरह, थोड़ा बहुत रैपो है, तो अब बताओ, मैं तो बॉन्ड ए बोल रहा हूं, विल यू इन्वेस्ट इन माई बॉन्ड? नहीं. वाई? मैं चाहता हूँ प्रॉब्लम ना क्या है? प्रॉफिट है ना, यील्ड जहाँ पे ज्यादा हो वहां पे इन्वेस्ट करो. अरे वो रोहित ऐसे ही बोलता है इमोशनल नहीं होने का. इमोशन बन सकता है ना यार, अपन दोस्त है, थोड़ा बहुत जानते हैं एक दूसरे को. नहीं. तो 9% में प्रॉब्लम क्या है? इन्वेस्टमेंट में थोड़ी कैलकुलेशन देते. है क्या है रोहित, तूने इनको बिगाड़ दिया लगता है. रोहित, व्हाट इज योर चॉइस, बॉन्ड ए की बॉन्ड बी? देख यार मेरे एग्जाम्पल given बहुत सीरियस information तो bond B है. बॉन्ड बी है ना? हाँ, इमोशनल होने का जरूरत ही नहीं है. बॉन्ड बी ना. कैन आई से बॉन्ड बी इज योर required rate of return over here right now? 10, sorry bro, not bond B. Can I say 10% is your bare minimum required rate of return you want right now? Yes. Yes. टाइम वैल्यू ऑफ मनी किया रोहित तुमने? उसमें ये सारा डिस्कशन सटल तरीके से मैंने किया है, बट नॉनदलेस वापस कर रहा हूं. सो कैन आई से 10% ही चाहिए? तो मैं बोलता है यार रोना बंद करो प्लीज, कुछ भी करो लेकिन रो मत. तुमको 10% रिटर्न चाहिए ना? मैं तुमको 10% रिटर्न देता हूं. एक काम करो, डे 1 पे तुम मुझे 1 लाख मत दो 1 लाख. डे 1 पे तुम मुझे दो $99,090 और तुमको कूपन रेट तो 9% ही दूंगा, पर मैच्योरिटी पे तुमको 1 लाख दे दूंगा. सो नाउ इन दिस केस योर यील्ड इज 9,000 प्लस, लेट मी पुट इट दिस वे, थोड़ा घुमा के बात करते हैं, मजा आएगा. योर यील्ड इज 1,09,000 अपॉन 1 लाख माइनस 1. योर यील्ड इज 10%. चाहिए तो कैलकुलेट करके देख लो. मैं चाहता तो थोड़ा स्पून फीड करता, लेकिन अपने को पसंद ही नहीं है फुल स्पून फीड. इज योर आंसर 10%?
हाँ कि ना? ये फॉर्मूला तो 9% ही आएगा. अरे सॉरी माय बैड. डिनोमिनेटर में 1 लाख नहीं आएगा. डिनोमिनेटर में इन्वेस्टेड अमाउंट आता है विच इज $99,090. सॉरी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट टू माई नोटिस. कैन आई से इन दिस केस इट इज 10%. बराबर ना? Yes. डिनोमिनेटर में से इन्वेस्टेड अमाउंट होता है ना, तो तुमने हाँ. तो इन्वेस्ट किया $99,000. इज योर आंसर 10%? Yes. बराबर है. सो देन कैन आई से to make an investment decision, can I say you did compare, which color? Purple color. You did compare the coupon rate with the 10%. Yes. And can I say, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग में रिफाइन करूंगा धीरे धीरे, फिलहाल जस्ट स्टार्ट किया. कैन आई से यू विल कंपेयर कूपन रेट विद समथिंग? अपना एक क्वेश्चन था ना, आपने कूपन रेट को कंपेयर क्यों किया? Yes, yes. तो उसका जवाब दे रहा हूं. कैन आई से इट इज योर लॉजिकल सेल्फ, नेचुरल सेल्फ दैट यू विल कंपेयर इट विद समथिंग. Yes. 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 तो कूपन रेट तो भाई कंपेयर करना बनता ही है. बराबर है. अभी सवाल ये कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है. भैया ये 10% ही तो है तुम्हारा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट अ बेटर बट देयर इज अ बेटर वे टू लुक एट इट. हाँ. तुम्हारा नहीं, बट इंटरेस्ट कूपन रेट 9% कैसे रहा? अगर आपने 99,000 पर लेके मैं ज्यादा पैसे दे दिया तो कूपन रेट बढ़ गया $9,000 ना. $9,000 कूपन पेमेंट. एंड व्हाट इज कूपन पेमेंट? कूपन रेट इंटू पार वैल्यू. तो 9% इंटू 1 लाख किया ना मैंने, तब जाके 9,000 मिला ना तुमको. तो कूपन रेट तो 9% ही है भैया. तो फिर तुमको रिटर्न बाद मिला में 1 10%. लाख कैसे की? क्यों? 1 लाख क्यों किया हाँ, उसने? बताता हूँ, जवाब देता हूँ, उसका भी जवाब देता हूँ. 5 मिनट देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू अग्री कि तुम कंपेयर करोगे कूपन रेट को किसी और के साथ? कूपन रेट 9% है फॉर श्योर. रोहित, ओके. ये पार्ट अग्री कर पा रहे हो तुम? दैट यू विल हाँ, कंपेयर ठीक है. कूपन रेट विद समथिंग. हाँ, तो व्हाट इज दैट समथिंग? ये 10% क्या है? आई गिव यू बेटर वे टू लुक एट इट. अभी मैं तुमको बोलूं कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो बॉन्ड है, उसका रेट जो है समझो 9% है. और उसके बाद मैं तुमको बोलता हूं कि भाई तुम एक्सिस बैंक जो है उसके बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, तो तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या होगा एक्सिस बॉन्ड का रिटर्न का? 9% होगा. More than 9. मोर देन 9% होगा. क्यों? क्यों के लिए? रिक्वायर है ना, तो रिक्वायरमेंट का तो थोड़ी कोई सेट हो. अरे यार, वैसे तो 100% भी तुम जवाब दे सकते हो मुझे. नहीं, लेकिन कंपेयर कर रहे हैं ना, तो कंपेयर कर रहे हो पहले तो तुमने एक्सिस बैंक का बॉन्ड का रिक्वायरमेंट तुमने बोला ज्यादा होगा, लेट्स से 10%. तो तुमने ज्यादा क्यों बोला? क्योंकि एक्सिस बैंक इज मोर SBI रिस्कियर देन एसबीआई ना. कल उठ के दोनों बैंक डूबेगा तो गवर्नमेंट पहले एसबीआई को बचाएगा ना. हाँ, हाँ. तो कहने से एक्सिस बैंक का रिस्क ज्यादा है, तो तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न है फॉर एक्सिस बैंक वो ज्यादा होगा. सो कहने से यू डिड कंपेयर एक्सिस बैंक का बॉन्ड विथ एसबीआई का बॉन्ड. यस. नाउ कैन आई से, यूजिंग विच कलर इज लेफ्ट, आई डोंट नो, कैन आई से दिस 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. नाउ किसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न? तुम्हारा इंडिविजुअल का नहीं बात कर रहा हूं, तुम्हारा मार्केट का, इन्वेस्टर का बात कर रहा हूं. तुम्हारा जो मार्केट का जो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, कैन आई से दिस इज इन कमेंशुरेट विद द रिस्क ऑफ द बॉन्ड. हाँ रोहित, यस. फटाफट Yes. बोलो यार. कैन आई से दिस 10% डज कैप्चर द रिस्क ऑफ द बॉन्ड एंड द बोरोअर एंड एवरीथिंग? करेक्ट. और अभी तुमको एक्सिस बैंक वाला बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, मैं 9% पे कूपन रेट दूंगा, तो विल यू इन्वेस्ट इन दिस बॉन्ड? एक्सिस बैंक के No. रिस्क के हिसाब से तुमको 10% रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन एक्सिस बैंक बोलता है कि नहीं, मैं तेरे को 9% कूपन रेट देगा, पहले दिन पे 1 लाख दे, बाद में तुझे 1,09,000 दूंगा. विल यू इन्वेस्ट इन दिस बॉन्ड? नो. नो ना. तो यहां पे तुमने जो कंपेयर किया है ना, वो कूपन रेट ऑफ एक्सिस बैंक को कंपेयर किया है विद द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एक्सिस बैंक. एंड व्हाट इज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एक्सिस बैंक? द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर विच इज कमेंशुरेट विद द रिस्क ऑफ द बॉन्ड. आर यू गेटिंग दैट नाउ? और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आता कैसे है? बेंचमार्किंग से, कंपेयर करने से. समझा? हाँ. मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो यू आर कंपेयरिंग कूपन रेट ऑफ द बॉन्ड विद द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द बॉन्ड. समझा? कूपन रेट may not capture the risk of the bond.
But market rate of interest will and always capture the risk of the bond. And that is why you're comparing them. समझा? Rohit? Clear. But not crystal. Because, think about it. तुम बोलते हो कि भाई तुमको 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है. लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां पे बीच में लिख देता हूं. लेकिन फिर भी मैं तुमको 9% दूंगा. विल देयर बी अ डिमांड फॉर द इन्वेस्टमेंट इन माई बॉन्ड? No. When the coupon rate is 9%, but the people want 10%, will people demand for the bond? No. No. रोहित? नो. और अगर डिमांड गिरेगा तो प्राइस को क्या होगा? गिर जाएगा ना प्राइस. डिमांड नहीं होगा तो सप्लाई रहेगा ज्यादा, डिमांड तो प्राइस गिर जाएगा. तो वही तो मैं बोलता हूं यार, रोना बंद कर. तू 99,000 में इन्वेस्ट करना. यू give me or you invest the bond or I issue the bond at discount to par value to you so that you are incentivized to invest in my bond. Are you getting it? To incentivize the investor, क्योंकि मेरा कूपन रेट कम है और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है रिस्क के हिसाब से, तो उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए मेरे को मजबूरी में बॉन्ड डिस्काउंट पे इश्यू करना पड़ता है टू द पार वैल्यू. सो इन दिस एग्जांपल द पार वैल्यू वाज 1 lakh एंड आई वाज फोर्स्ड टू इश्यू द बॉन्ड एट प्राइस बिलो द पार वैल्यू. सो डे 1 पे एज अ बोरोअर मुझे मिलेगा 99,000, लेकिन एक्सपायरी पे मैं तुमको 1 लाख भी दूंगा और 9,000 भी दूंगा कूपन. तब जाके तुम खुश हो जाओगे कि हाँ भैया मुझे मेरा 10% रिटर्न मिल गया, ब्लैक कलर. समझा? अब समझा when coupon rate is less than the market rate of interest, Yes. why the bond is issued at discount? यस यस. तो बेसिकली आज मैंने बॉन्ड खरीदा और इंटरेस्ट रेट है कुछ, और बाद में बढ़ जाता है इंटरेस्ट रेट, और मैं सेकेंडरी मार्केट में उसको बेचना चाहता हूँ, तो भाव गिर जाएगा. तो भाव गिर जाएगा मेरा. हाँ, ठीक है. इसके ऊपर बात करेंगे. इंटरेस्ट रेट और प्राइस का जो तुमने कनेक्शन निकाला है यहाँ पे, उसके ऊपर बात करेंगे. पर एक के बाद एक कैन आई से तुमको कूपन रेट ब्लैक कलर में, रेड और ब्लैक कलर में जो लिखा है मैंने बॉन्ड ए के बारे में जो मैंने इशू किया है, उसमें यार कूपन रेट 9% है, लेकिन साला तुमको 10% रिटर्न मिल कैसे रहा है? That's value कौन है? वो आपने हाँ? बताया ना, डिस्काउंट में खरीदा है मैंने वो बॉन्ड को. थोड़ा और स्पेसिफिक बात करो ना. यू आर इन द राइट डायरेक्शन. What is this happening over here that you end up getting 1% more? ऐसा तो क्या हो रहा है यहाँ पे? Can I say तुमने पैसे कम दिए पर तुमको 910 ज्यादा मिला, और वो 910 के वजह से तुम्हारा रिटर्न 10% है, Correct. वरना 9% होता. बिकॉज यू इशूड द बॉन्ड डिस्काउंट. तुमने जो बोला वही मतलब है. इज जस्ट दैट आई वांटेड टू मेक श्योर दैट यू टेक नोट ऑफ दिस 910 नंबर. ओके. बराबर है? इसका नाम क्या है? सानिया एंड अंजलि. कहना हाँ. चाहिए 910 के वजह से हुआ है. हाँ. याद रखना, आगे जाके यही एग्जांपल वापस दोहराऊंगा, और ये 910 को बोलते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट, बट बाद में बात करेंगे. डोंट वरी अबाउट ऑल दैट थिंग. ठीक है? सर, लेकिन खाली सो- इतना नहीं। हाँ, बोल ये बोल बोल. कंपनी जो है वो 99,090 रुपीज जो भी है, वो हाँ. ऐसे कैसे एग्री कर सकता है कि तू ऊपर मुझे इतना ही दे, फिर भी मैं तुझे इन फ्यूचर में इतना ही फिक्स अमाउंट दूंगा 1,09,000. अरे क्योंकि कंपनी के पास शायद यहाँ पे तो 1 साल का बात कर रहा हूँ और समझ 10 साल का बॉन्ड है, तो कंपनी का पर्सपेक्टिव ये रहेगा कि भाई मैं हर साल 10% नहीं दे सकता हूँ इंटरेस्ट. एक काम करता हूँ, अभी 9% दे देता हूँ, बाद में एक साथ बाकी का दे दूंगा पैसा. ऐसा भी हो सकता है ना? बराबर. बेसिकली वी आर possible है बाइंग ना? बिलो पार वैल्यू, राइट, इन दिस केस. इन्वेस्टर इज बाइंग बिलो पार वैल्यू, द बोरोअर इज गेटिंग लेस मनी. तुमको आई डोंट नो रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ, बट इफेक्टिवली स्पीकिंग तुम्हारा रिटर्न 10% है और बोरोअर का कॉस्ट भी 10% है. इस जैसे पहले वो 9% कूपन दे रहा है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बॉन्ड, और बाद में जो डिफरेंस है 910 वो तुमको दे रहा है, तो इफेक्टिवली 10% हो जाता है. गौर करो. हाँ. तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कॉस्ट ऑफ डेट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% इन दिस केस, नॉट 9%. समझा?
और तुम ये 10% लेके कैलकुलेशन करोगे. आई मीन कॉर्पोरेट फाइनेंस में कॉन्सेप्ट है, तो आई गेस यू आर एबल टू कनेक्ट. ठीक है, इतना समझा क्या? हाँ हाँ. लेकिन मुझे एक चीज समझा नहीं यार. यार ये मैंने मतलब क्या गजब का मैंने तिगड़म लगाया कि मेरा एक्यूरेसी देखो यार कैलकुलेशन का, या कैलकुलेशन तो नहीं बोल सकता पर एक्यूरेसी देखो. मैंने 99,090 लिखा और जैसे ही वो लिखा 10% आया. ये 99,090 आया कैसे? सोचने वाला बात है नहीं? क्या नहीं, तुम्हारे मन में ये सवाल था कि नहीं था? हाँ, इसीलिए तो मैंने आपको पूछा कि क्यों तूने ये शुरू हो थोड़ी ना गया। पूछा मुझे. मतलब एनीवेज, ये है कि भाई तू मतलब ये जो भी मतलब दे रहा है बोरोवर जो है वो कौन से बेसिस पे इसने नकल किया होगा। हाँ कौन से बेस पे? अच्छा नंबर कैसा है तुम्हारा, वो सवाल था. अच्छा सॉरी, मैं कुछ और मतलब समझा. हाँ, हाँ तो भाई मेरा भी वही सवाल है. सानिका, रोहित भाई, तुम दो जवाब दो हम दोनों के सवाल का. वो 10%, 9910 का 10% 910 है ना, तो वो माइनस करके आया होगा. नहीं, माइनस करके नहीं आया. नाइन वन जीरो इसके लिए आया क्योंकि लिए 99090 है. समझा मेरा पॉइंट? समझा ना तुम? 99090 नंबर है करके 910 मिला, नॉट अदर वे राउंड. तो when we are starting we don't have both these numbers. Let me put it this way. तुमको खाली इतना बोला है कि एक साल बाद 9,000 मिलेगा और 1 लाख मिलेगा बस. और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन वी हैविंग. तो 99,000 कैसे है एग्जैक्ट? तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा ना हमें। Exactly. Can I say this $99,090 is the present value of future cash flow? मतलब तुमने कहां पे लिखूं, यहां पे लिख देता हूं. मतलब तुमने 1,09,000 तुमको फ्यूचर में मिलेगा. एंड कैन आई से यू डिस्काउंटेड द फ्यूचर कैश फ्लो नॉट एट द कूपन रेट, एट द 10% रेस्ट टू द पावर 1. एक साल का यहां पे तो हाँ हाँ. time value of money, you always Yes. discount the cash flows at the required rate of return. Yes. By the way, this 10% is your IRR, by the way. Corporate finance. हाँ यार तुमको घुमा फिरा के मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिखा रहा हूं. You always discount future cash flows at the required rate of return. In case of bond, that required rate of return is the market rate of interest, not the coupon rate. Coupon rate may or may not be equal to the risk of the bond, but market rate of interest will and always be equal to the risk of the bond. Are you getting it, Rohit? And when you do that calculation, you will get $99,090. ठीक है? हाँ. By the way, can I say this is IRR of the bond? 10%. Present value of inflow is equal to present value of outflow. यस Yes. हाँ. आया हाँ बट ये चीज जिंदगी में याद रखना, चाहे वो कुछ भी चीज हो, एनीथिंग विच यू आर वैल्यूइंग, एनीथिंग विच इज प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो, यू विल ऑलवेज डिस्काउंटेड विद द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर. ठीक है? Yes. ये मैं तुमको टाइम वैल्यू मनी से समझा रहा हूँ, इक्विटी के वैल्यूएशन में भी समझाया था, कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी समझाया तुमको एनपीवी के टाइम पे, और वापस तुमको यही चीज पॉइंट बता रहा हूं. गेट इट रोहित? Yes. And by the way, can I say, and please let me say, if the coupon rate is 10% and the market rate of interest is 10%, can I say the bond will be issued at par? 1,10,000 divided by 1.10 equal to 1 lakh. Can I say the bond will be issued at par? Right? यस And
And can I say if the coupon rate is 10% but the market rate of interest is 8%, रिस्क के हिसाब से 8% चाहिए लेकिन 10% कूपन है, कैन आई से मारा मारी होगा, डिमांड बढ़ जाएगा और प्राइस बढ़ जाएगा और बॉन्ड प्रीमियम पे इशू होगा हमेशा? हम्म क्या बोलते हो? यस हाँ हाँ